سر ایک دفعہ پھر سے یوں لگتا ہے کہ یہ امن جس کو بحال کرنے کی کوششیں اور دعائیں ہو رہی تھیں دوبارہ سے شاید دائیوں پر لگنے جا رہا ہے۔ ٹرمپ صاحب کے بیانات ہمیشہ کی طرح ایک دفعہ پھر سے اور یوں لگتا ہے کہ بڑے ڈرامائی انداز میں اب وہ معاملات کو آگے چلا رہے ہیں کہ آخری سانسوں پر ہے جنگ بندی اور وینٹیلیٹر پر ہے۔ تو سر کیا کہیں گے، امریکی صدر کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیے وہ تو بڑے کنسسٹنٹ رہے ہیں اپنے سٹانس میں، وہ اسی طرح مرکیورین ہے جیسے پہلے ان کا سٹانس تھا، تو ان کی کوئی اٹرنس کوئی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اتنی حتمی طریقے سے اس پہ یقین نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ کچھ گھنٹوں کے بعد کوئی اور سٹیٹمنٹ آ سکتی ہے۔ البتہ یہ جو معاملہ ہے یہ تو کانسیکوینس ہے نا، جو ایران کو پروپوزل گیا تھا امریکہ کا اور ایران نے جواب دیا ہے پاکستان کے تھرو، اور وہی 14 نکات تھے جس پہ ایران مصر تھا۔ اس میں سے جو اس کو آبنائے ہرمز کو کنٹرول کرنا، وہاں سے فیس لیوی کرنا، وار ریپریشنز، اور اس کے بعد جو یورینیم ہے اس کو ایران کے اندر ہی رکھنا، یہ تین چیزیں ہیں جو کہ ان ایکسیپٹیبل ہیں امریکہ کو، اور وہ کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے، کیونکہ امریکی صدر چاہتے ہیں کہ کمپلیٹ سیمبلنس آف وکٹری ہو جس کو وہ لہرا سکیں اپنے الیکٹوریٹ کے سامنے، اور یہاں پہ جو چیزیں ہیں اس میں تعطل آیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ اسی طرح کی پوسچرنگ ہے۔ ابھی تک انہوں نے آپریشن جو فریڈم تھا اس کو ختم کرنے کا بھی اعلان کیا۔ یہاں پہ سر سوال یہ ہے کہ جس طرح سے نکات دیے گئے تو بہت سی چیزیں ہم نے ایسی بھی دیکھی جو کہ شاید امریکہ تو مان ہی لے، لیکن امریکہ کو جو اس وقت ڈائریکٹ کرنے والا ملک ہے اسرائیل، شاید اس کے حوالے سے یوں لگتا ہے کہ وہ قابل قبول نہیں ہیں، تو نہیں ہیں تو معاملات شاید اس جانب جا رہے ہیں۔ جی بالکل، یہ بہت اہم نکتہ ہے، کیونکہ جو مین سپوائلر ہے یا جس کی وجہ سے یہ جنگ شروع ہوئی تھی وہ اسرائیل ہے، اور کیا وہ اتنی آسانی سے یہ مان جائے گا؟ کیونکہ وہاں پہ ایک ایسی حکومت ہے جس کا جو سربراہ ہے اس کے اوپر چارجز ہیں کرپشن کے، انکلوڈنگ اس کی وائف کے، اور اگر وہ حل نکلتا ہے اور وہ دوبارہ اکتوبر میں الیکشنز میں جاتے ہیں وہاں پہ اسرائیل میں، تو وہ تو الیکشن ہاریں گے، ہارنے کی صورت جیل ہے، تو وہ ان کی منشا تو یہ ہے کہ فار ایور جنگ جاری رہے، ایران سے کام نہیں بنتا تو چلو لبنان پہ چڑھ دوڑو، تو وہ اس کو رین ان کرنا ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو، اور وہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس سے بھی بڑا ایک چیلنج آ چکا ہے، کیونکہ ان کی اپنی اٹرنسز تھی کہ جس طریقے سے وہ کہتے آئے ہیں صدر ٹرمپ کے میں JCPOA جو اس کا تھا اوباما کا، اس سے بہتر میں ایک پلان دوں گا، تو اب یہ ایک بات کہنا، یہ اس کو پروف کرنا، اور گراؤنڈ کی جو سچویشن ہے اس میں اپنی جو افواج ہیں انہوں نے ان کو بڑا کلیئرلی بتایا ہے کہ یہ اتنی آسان یہ کاروائی نہیں ہوگی، کیونکہ اگر گراؤنڈ وار شروع ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ کو تیاری ویر ودول چاہیے، کیجلٹیز ہوں گی، ڈاگڈ ریزسٹنس ہوگی، ایرانی ایسیمیٹرک وارفیئر کریں گے، تو اس لیے ابھی معاملہ کافی گھمبیر ہے، پوسچرنگ ہو رہی ہے۔ دوسرا ایران کو بھی چاہیے تھوڑا سا اپنے جو سٹانس میں لچک پیدا کرے، کیونکہ یہ جو آبنائے ہرمز کا کنٹرول والا معاملہ ہے یہ کسی طور پہ ان کا انٹرنیشنل لا کے مطابق جائز نہیں ہے، اور تو لیکن سر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایران کا اپنا ہی موقف ہے یا کوئی اور بھی طاقتیں ہیں جو ایران کے پیچھے ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ اس طرح سے، کیونکہ میجر ٹریڈ تو وہاں سے پھر چائنا کی ہی ہے، آئل تو پھر آبنائے ہرمز سے جو میکسیمم گزرتا ہے وہ چائنا کا ہے۔ جی تو چائنا بھی نہیں چاہے گا کہ اس پہ کوئی کسی قسم کا لیوی ہو ٹیکسز کی، کیونکہ وہ تو پھر کاسٹ آف جو کامرس ہے بڑھ جاتی ہے، تو یہ انٹرنیشنل اسٹیٹس ہے، سوائے ٹرکش واٹر جو کہ مونٹریو کنونشن سے اس کے نیچے ہے، اس کو کچھ کنسیشنز دی ہوئی ہیں، دنیا میں جتنے یہ انٹرنیشنل اسٹیٹس ہیں، ملاکا ہے، دیگر ہیں، ان پہ کوئی اس کا اطلاق نہیں ہوتا اس قسم کے قوانین کا، اور وہ UN کنونشن آن لا آف سی کے انڈر ہے، اور اس کے علاوہ ایک رائٹ آف جو ٹرانزٹ پیسج، یہ کمرشل جتنی بھی شپنگ ہے اس کو ایک انٹرنیشنل اسٹریٹس جو کہ دو سمندروں کو ملاتے ہیں اس میں ہوتا ہے، تو یہاں پہ ایران کو بھی چاہیے کہ اس کو کچھ لچک کا وہ مظاہرہ کرے ٹو لیو ٹو فائٹ another day، کیونکہ ان کو زیادہ دیکھنا چاہیے کاسٹ بینیفٹ کدھر ہے، ان کا سینکشنز ہٹیں گی، مضبوط ہوں گے، اور ان کا
सिक्योरिटी भी इंश्योर होगी। तो सर यही आपने जब मजबूती की बात की ईरान के हवाले से, तो क्या सर एक मजबूत ईरान खित्ते में जो दूसरी ताकत जिसने जंग शुरू करवाई इसराइल के लिए काबिल कबूल है? क्योंकि चाहिए तो बहुत कुछ है, ऐसा भी होना चाहिए वैसा भी होना चाहिए, लेकिन ऑन ग्राउंड क्या ऐसा हो सकता है? अगर मैं चाहूं कि अगर ब्लैक एंड व्हाइट में बात की जाए तो क्या वॉर दोबारा से रिज्यूम होने जा रही है? जी, पहले आपका जो था, यस, उनके लिए काबिल कबूल नहीं है, ये रेजीम नहीं है एज लॉन्ग एज इनकी ये आइडियोलॉजी है। हाँ, अगर कोई जोग्राफियाई वहदत के तौर पे वो बरकरार रहे और अपनी पॉलिसी में जौहरी तब्दीली, जैसे मिस्र उनको एक्सेप्टेबल था कैंप डेविड के बाद, तो ईरान भी हो सकता है अगर कोई और रेजीम आ जाए। इस रेजीम के साथ नहीं होगा। और यस, जंग का दोबारा खतरा बिल्कुल है अगर ये ऊंट किसी करवट नहीं बैठता और ये मामलात इनमें तय नहीं होते, तो कोई मिस कैलकुलेशन जो है वो दोबारा जंग की तरफ जा सकती है। किसी किस्म का वो हमला हो सकता है, पहले वो जैसे हमले हुए थे मिसाइल, उसके बाद एयर और कुछ स्पेशल फोर्सेस, उसको भी लॉन्च किया जा सकता है, तो वेरी मच पॉसिबल। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ साहब, आपने हमें वक्त दिया और इस अहम मौजू के ऊपर मुफस्सल हमें जो है इस हवाले से अपडेट भी किया और हमारे साथ गुफ्तगू की। आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं उस्मा कारदार साहिबा, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। बहुत शुक्रिया उस्मा कारदार साहिबा। एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें नज़र आती है, यकीनी तौर पर पूरी कौम जो है यूं लगता है कि इस वक्त सूली पे जो है अटकी हुई है या टंगी हुई है, कह सकते हैं कि ये जो वॉर है, शायद गरीब शख्स इस वक्त सबसे ज़्यादा दुआ कर रहा होगा कि ये वॉर जो है वो ना हो, क्योंकि उसके लिए जीना दो भर हुआ है। तो आप क्या समझती हैं कि जिस तरह से अब ये मामलात आगे की जानिब जा रहे हैं और जितनी तेजी से मामलात हो रहे हैं, क्या हुकूमत की भी कोई स्ट्रेटेजी है? क्या हुकूमत ने कोई कुशन क्रिएट कर रखा है, या फिर सब कुछ आवाम पे जैसे आता जाएगा वैसे डाला जाएगा, क्योंकि आवाम का तो फिर कोई पुरसाने हाल नहीं होगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सलमान, आपने मुझे इनवाइट किया। सलमान, जो इस वक्त आप ये सिचुएशन बयान कर रहे हैं वो सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, दुनिया के जो बहुत बड़ी बड़ी जो पावर्स हैं और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो भी इसी किस्म की अनसर्टनिटी और तजब्जुब से गुजर रही हैं। आपको पता है यूरोप के जो एयरलाइंस हैं उनके किराए जो है वो डबल हो गए हैं, क्योंकि उनके पास 14 दिन से ज़्यादा की गैसोलीन नहीं है। अमेरिका में जितनी एनर्जी और ऑयल क्राइसिस जो है इस वक्त आया है और प्राइसेस जो है वो बढ़ी हैं, वो पिछले 4 साल में कभी नहीं बढ़ी। वहाँ पे भी उनकी इकोनॉमी में बहुत स्ट्रेन पड़ रहा है, वहाँ पे लोग सड़कों पे निकले हुए हैं, जिससे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पे भी बड़ा जो है प्रेशर है। तो पाकिस्तान तो एक डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन पाकिस्तान ने ये जो अपनी जो चैलेंजेस हैं इनको अपॉर्चुनिटीज़ में भी बदलने की काफ़ी हद तक एक कामयाब कोशिश की है। आपको पता है हमारे जो पोर्ट्स हैं वो कंटेनर्स जितने वहाँ पे मौजूद अब हैं वो डाइवर्जन्स के बाद पहले कभी इतने नहीं हुए। तो ये प्रॉब्लम हमारी जो ऑयल की है वो तो जाहिर है वो तो होनी है। वी आर नॉट ऑयल प्रोड्यूसिंग, हम कोई तेल तो नहीं प्रोड्यूस करते ना, हमारा तो 70% तेल जो है वो इम्पोर्ट होके बाहर से आता है। हमारी बिजली जो है वो फर्नेस ऑयल से बनती है। तो ये तो फिर इंटरनेशनल जो कीमतों का उतार चढ़ाव है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे पे आता है। चूंकि हमारी बिल्कुल सही कह रही हैं, और चूंकि हमारी नहीं, एक आखिरी बात, चूंकि हमारी टैक्सेशन का सिस्टम इतना फ्लॉड है, वो ब्रॉड बेस नहीं है, हम लोगों के डीएनए में नहीं कि हम टैक्स दें। तो पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो 85% जो आबादी है वो टैक्स देती है। हमारे 25 करोड़ में से मैक्सिमम 18-20 लाख लोग, वो भी सैलरीड क्लास। तो मैडम हुकूमत तो फिर इसीलिए आई ना, हुकूमत का काम ही यही है कि वो टैक्स ले। वो जो इदारे हैं अगर उनकी ना अहली अगर पेट्रोल के थ्रू लेनी है, लेवी के थ्रू लेनी है, इसीलिए तो लेवी लगाना पड़ता है। इसीलिए तो देखें ना, लेवी लगाना पड़ता है, वरना हुकूमत का तो हुकूमत चल ही नहीं सकती है। तो अब आप ये समझती हैं कि अगर इस तरह से टैक्स ले लिया जाए, क्योंकि पेट्रोल तो हर शख्स की जरूरत है, तो आप समझती हैं कि आप सबसे वही वाला टैक्स लेंगी, ना कि उसकी प्रॉपरली जिस तरह से बाइफरकेशन होनी चाहिए, किस क्लास पे कितना लगना है, प्रॉपर कैलकुलेशंस होनी चाहिए, ना कि सब पे एक साथ लगा दिया। नहीं, देखिए बात सारी ये है, ताजर तबका आपका है, ठीक है, जब उन पे टैक्स लगाने की बात होती है वो सब सड़कों में निकल आते हैं, ठीक है,
करोड़ों का कारोबार होगा, लेकिन वो बैंक के थ्रू नहीं करेंगे, वो कैश बेस्ड होगा, ठीक है। फिर अनडॉक्यूमेंटेड आपकी इकोनॉमी है। फिर आप देखें कि आपके मैडम पेट्रोल तो वो भी डलवाता है जिसने पहले से टैक्स दिया है। वही मैं कह रहा हूं ना, आपका एग्रीकल्चर टैक्स जो है वो नहीं लग सकता है, वो फिर आपको पता है कि कहां से फिर चीखें निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो हमारे एफबीआर में शदीद रिफॉर्म्स कर भी रहे हैं, कंप्यूटराइज कर लिया, लेकिन हमारे प्रॉब्लम ये है कि आदत हमें पड़ गई है कि हम हुकूमत को पैसा नहीं देंगे, हम जो एफबीआर का जो इंस्पेक्टर है उसकी जेब गरम कर लेंगे, बिल्कुल ठीक, लेकिन हुकूमत को हम नहीं देना गवारा करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। आमिर मुगल साहब, सर आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें वक्त दिया। सर हुकूमत जो है क्या सबसे ही टैक्स लेगी दोबारा से, या फिर कोई इदारे हैं उनका काम है कि जिससे टैक्स बनता है उससे लिया जाए, ना कि सबके सब टैक्स जो है वो एक ही जो है लाठी से सबको हांकने की तरह सबसे ले लिए जाए, चाहे उसमें गरीब भी आ जाए जिस पे टैक्स भी बनता वो भी दे, और फिर जिसने दे दिया वो भी देता रहे। देखें क्यानी साहब, सबसे पहले तो मैं माजरत चाहूंगा, मेरी बहन जो है वो अजीबोगरीब किस्म की जस्टिफिकेशन दे रही हैं, और कल परसों मैंने इसी किस्म की जस्टिफिकेशन इनके एक मिनिस्टर हैं मुज़फ़्फ़र रहमान साहब, उनके मुंह से भी सुनी। क्योंकि ये अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आए नहीं है, इसलिए इन्हें पता नहीं है अवाम चाहती क्या है, या अवाम के इश्यूज क्या है, या अवाम में हमने दोबारा जाना है या नहीं जाना है। सबसे पहले तो ये देखें कि ये जस्टिफिकेशन ये दे रहे हैं कि चूंकि टैक्स कलेक्शन नहीं हो रही और पूरा पाकिस्तान टैक्स चोर है और सारे ताजर टैक्स चोर है, इसलिए हम जो है वो जो अखराजात है या जो टैक्स डेफिसिट है वो अब हम पूरा करेंगे अवाम से। तो ये क्या आप दुनिया में आपने कभी कोई ये जस्टिफिकेशन सुनी है? किसी भी जगह, किसी भी महज़ब माशरे में, किसी भी जमहूरी माशरे में, किसी भी आईन और कानून के माशरे में आपने कभी ये जस्टिफिकेशन सुनी है? क्या नहीं साहब, कि टैक्स तो होता है सरमायादार से या अमीर बंदे से लेके गरीब पे खर्च करने का नाम। टैक्स तो होता है जिसके पास इतनी पावर हो, जिसकी इतनी इनकम हो, जो अपनी इनकम पे टैक्स अदा कर सकता है, उससे टैक्स लेके गरीब पे खर्च करने का नाम। इन्होंने कहा कि चूंकि हम तो किसी अमीर से टैक्स ले नहीं सकते, किसी काबिल टैक्स आदमी से टैक्स ले नहीं सकते, अब उसका जिम्मेदार चाहे वो टैक्स देने वाला है या टैक्स लेने वाला है, दो ही जिम्मेदार हो सकते हैं ना, या टैक्स लेने वाला उसका जिम्मेदार है या टैक्स देने वाला उसका जिम्मेदार है। लेकिन इन्होंने कहा कि ना चूंकि हम टैक्स दे नहीं सकते, अब इन्होंने हल क्या निकाला है? एक गरीब बंदा जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, सर पे छत नहीं है, जिसके पास गाड़ी नहीं है, जिसके पास अपने बच्चों की सहूलियात नहीं है, जिसके पास अपने बीवी बच्चों के लिए 2 टाइम की रोटी पूरी करने के लिए, कहते हैं अब हम टैक्स उससे पूरा करेंगे, अब हम उसकी खाल उतारेंगे, हम उसकी चमड़ी उतारेंगे, हम उसका खून पी जाएंगे, इसलिए कि हमने ये मुल्क चलाना है, इसलिए कि हमें इस मुल्क को मुसल्लत कर दिया गया, इसलिए कि हमें अवाम ने वोट नहीं दिया था, हमें ला के बजोरे डंडा बिठा दिया गया। अब चूंकि बिठा दिया गया, हमने पैसा जो गरीब अवाम से इकट्ठा करना है। अजीबो गरीब जस्टिफिकेशन है, और शर्म भी नहीं आती किसी को ये जस्टिफिकेशन देते हुए कि आप ऐलान कह रहे हैं और ये मैं अवाम सुन रही है। आपको भी शर्म आ जानी चाहिए। 3.5-4 साल आप गुजार के गए हैं। मैडम जरा वो पॉइंट पूरा करने, आपको भी मेरे बानी करके मैडम फिर ये मामला खराब हो जाएगा, बदल देते हैं, मामला खराब होगा। टैक्सेशन का सिस्टम बदल देते, क्यों नहीं बदला आपने? प्लीज आपने क्यों ये सिस्टम नहीं बदला? आपके पास मौका था बदलने का। शर्म दूसरों को तो आप दिला रहे हैं। चले मैडम, आप अपनी टर्न पे आप उनको भी शर्म दिलवा दीजिएगा। मैडम बस बात पूरी कर दिलवा रहे हैं, जी जी खुद भी तो शर्मिंदा है ना। जी आपने अपनी टर्न पे उनको शर्मिंदा करना है मैडम। जी आमिर मुगल साहब पॉइंट पूरा कीजिएगा। आप अपनी बारी पे बोले। जी सर आप आ जाइए सर, अपने पॉइंट पे आ जाइए सर। जी सर आप अपने पॉइंट बेहतर करें। अब मलबा ये जंग पे डाल रही है मेरी बहन। अब मुझे समझाइए, जंग की वजह से जो आलमी मंडी में $85 फी बैरल था, वहां से सुन लें, $85 फी बैरल से $115 या $20 फी बैरल पे चला गया है आलमी मंडी की वजह से, जंग की वजह से। ठीक है, तहरीके साहब के दौर में भी गया था $115 फी बैरल, तो तहरीके साहब कैसे $150 पे बेच रही थी, उस वक्त भी यही रेट था, आज भी वही रेट है आलमी मंडी का। तो हम $150 पे बेच रहे थे, 416 पे बेच रहे हैं। इनकी नैली, इनकी नलैकी, इनके नकम्मेपन की वजह से डॉलर जो हम 175 पे छोड़ के गए थे, ये 286 पे उसको ले गए। उसकी वजह से इनको आज पेट्रोल जो कास्ट कर रहा है वो $250 कास्ट कर रहे हैं। इनसे ये पूछें कि इसके ऊपर 170 पे
ले रहे हैं आवाम से। बिल्कुल। जंग की वजह से जो महंगा हुआ है उसका मतलब ये है कि आप जंग की आड़ में ठीक हो गया सर, इनकी तरफ से मजीद टैक्स लगा देंगे। मतलब वो जंग जो ईरान और अमेरिका के दरमियान लगी हुई है, जिसकी वजह से बांग्लादेश में पेट्रोल का रेट नहीं बढ़ रहा, जिसकी वजह से सर हो गया सर, पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल। पाकिस्तान में आपने पेट्रोल जो है वो 260 से 416 पे ले लिए, तो फिर आप कहती है कि हमें शर्म भी ना दिलाएं। सर ये सर जस्टिफिकेशन हुकूमत की जानिब से भी आगे, वो कहते हैं जनाब एफबीआर ने भी इकट्ठा करना था, वो नहीं कर सके तो हमने पेट्रोल के थ्रू कर लिया। चलें इस पर मजीद बात करेंगे। अली सामल साहब, रहनुमा लेवी टैक्स हमने तो नहीं लगाया था, इनके जमाने में भी यही लेवी टैक्स था, ये इसी लेवी टैक्स से ये हुकूमत चलाते थे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ये वैलिड पॉइंट है उसमें। चले ठीक है, अली सामल साहब से सर जरा गुफ्तगू उनको भी प्रोग्राम में एंड कर लें सर, फिर सर आपसे सर जरूर सर सारी बातें करनी है सर आपसे, बहुत अभी वक्त। सुन लें, जब रशिया की और यूक्रेन की जंग हुई, जब $118 फी बैरल पे पेट्रोल की आलमी कीमत हुई, इमरान खान ने लेवी सिफर कर दी, सिफर। 150 रुपए पर लीटर जब इमरान खान दे रहा था उस वक्त लेवी सिफर थी। तो अब जब आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ी है, तो इनके बजाय इसके कि लेवी को सिफर करते, ये लेवी को बढ़ा दिया इन्होंने। इनसे ये पूछे, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया सर। मैं चाहता हूं कि अब सर आपको फिर मौका मिलेगा। सर सामल साहब भी हमारे साथ है, मैं चाहता हूं कि उनको भी प्रोग्राम में इन कर लिया जाए। अली सामल साहब, यकीनी तौर पर आपने गुफ्तगू तो सुन ली दोनों साहिबान की, तो सर क्या समझती है ये जिस तरह की जस्टिफिकेशंस आ रही हैं हुकूमत की जानिब से, और जो बड़ी एक ओपनली जस्टिफाई किया जा रहा है कि जनाब एफबीआर से वो नहीं हुआ तो हमने इधर से, सर ये क्या वैलिड है? अवाम का इस वक्त जो आप ऑन ग्राउंड सिचुएशन भी देखते हैं, उनकी जो हालत है उस पर ये चीजें और इतनी जो है ओपनली कह देना और इतने सख्त दिली से कह देना, तो क्या ये जस्टिफाइबल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान कानी साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, और आपके तमाम पैनल को भी अस्सलाम वालेकुम। आज जो बातें सुनी हैं हमने अपने फाजिल मेंबर्स की, चाहे वो पीटीआई से हों या पीएमएलएन से हों, तो पाकिस्तान की अवाम जो है वो मज़ीद किसी इंतशार का शिकार हो रही है। मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही रिस्पेक्टेबल लोग हैं, अपनी पार्टीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे रिस्ट्रेंट भी दिखानी चाहिए और कोई काम की बातें करनी चाहिए। अब पीटीआई का जो भी मौक़िफ़ है इस जंग के बारे में, लेकिन इनका टेन्योर गुजरा और उस टेन्योर में हमने देखा कि जो मईशत के साथ हुआ, अभी पीएमएलएन रूलिंग पार्टी है, दे आर इन द गवर्नमेंट, और वाकई ये बात कहना कि अवाम जो है वो एफबीआर के जेबों में पैसे डाल रही है, आई थिंक। अली साहब